गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्प डेस्क चैनल छत्तीसगढ़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी असाइनमेंट के अंतर्गत विषय अंग्रेजी कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर एजुकेशन सेशन 2020-21 मंथ अक्टूबर असाइनमेंट सेकंड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। इन प्रश्नों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिए गए हैं। असाइनमेंट तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड टू ब्रिंग बैक द स्प्रिंग इन द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश। वी कैन डू दिस बाई inculcating the values too. First point है, have a strong will to ensure that all children get basic education. This may be done by helping them join the open school system if they are not able to attend the regular school. The second point is, one should have the commitment and determination to help these children and their families by giving them same opportunities like urban children. Next point is, say no to child labor in any work related to us during the children's school hours. Feel the need to do something for such children, exemplifying the saying, where there is a will there is a way. And last point, create awareness in society about the plight of underprivileged so that people in power can help them. Next question है, mention the hazard of working in the glass Bengal industry. तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें टोटल 4 मार्क्स हैं एंड वर्ड लिमिटेशन 75 to 100 है। द बेंगल मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हैजार्ड वाइल वर्किंग। मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु वर्कड नियर हॉट फर्नेसेस ड्यूरिंग डे लाइट ऑफ losing their eyesight before adulthood. Years of mind numbing toil have killed all initiative and abilities to even think of taking up another profession. Next point है, they are not able to organize themselves into cooperative due to a bullying and exploitation by the politicians, authorities, many leaders and the middlemen. This is money leaders ना, you can correct this. मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। They live in sticking lane choked with garbage, having homes with crumbling walls, doors, no windows, overcrowded with families of humans and animals coexisting in a prime state. They have not even enjoyed even one full meal in their entire lifetime because of their poverty. तो यहाँ पर आप अपने मन से भी कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट जितने रिक्वायर्ड पॉइंट थे वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द वर्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल डिफर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, द पिक्चर एंड मैप्स दैट हैव बीन पुट अपॉन द क्लासरूम वॉल्स आर नॉट यूजफुल बिकॉज दे आर depict the civilized world. The portrait of Shakespeare is useless to the slum children because they will never read his books. The word shows in map is not their world. Their world is confined to the wall of their classroom and the slum in which they live. Thus, they are not meaningful. The map of the world, with its colorful projections of the earth, is also a bad example to those slum children because they imagine the world from the map and understand the fact that their world is different from that of the map. Their future is dark and they live in perpetual
स्टेट ऑफ ग्लूम, हंगर एंड डिस्पेयर। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जितने बार भी वर्ड आया है ये WORLD है ना, तो इसे आप लोग करेक्ट करिएगा ये वाला। और एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए हैं WORLD होगा ये। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कभी भी WORD नहीं आएगा, वर्ड दैट रिफर टू द अल्फ़ाबेट्स, अक्षर को हम उसको बोलते हैं, ये वर्ड दुनिया वाला वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 नोट मेकिंग है और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो मैंने यहाँ पे दिया है। आपको इसमें हेडिंग देना होता है, इसके बाद इसमें जितने पैराग्राफ हैं उनकी सब हेडिंग और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं जिसे हम नोट मेकिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एब्रिविएशन भी यूज़ करना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पली जैसे हेडिंग में आप इनमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, आप कुछ अलग हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिनामोन मेडिसिनल प्लांट, या फिर स्टोरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट सिनामोन, या अ मैजिकल मेडिसिन इन स्पाइस सिनामोन। तो ये आप कुछ भी हेडिंग पढ़ के पूरा अच्छे से पैराग्राफ को समझ के डाल सकते हैं। फिर जो पैराग्राफ 1 है उसमें किस चीज़ के बारे में दिया उसका आप एक सब हेडिंग बनाइए और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखिए, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं पर्टिकुलर पैराग्राफ 1 से। फिर पैराग्राफ 2 में चले जाइए, वहाँ पर सब हेडिंग लिखिए और उसके कुछ पॉइंट्स लिखिए। सिमिलरली जैसे मैंने देखा कि 3rd पैराग्राफ में ये सिनामोन के इफ़ेक्ट के बारे में बताया है, तो वहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स निकालिए और इसको लिखिए। और लास्ट में 4th पैराग्राफ के लिए भी आपको सेम ऐसे ही करना है और कुछ कुछ वर्ड्स के लिए आपको एब्रिविएशंस यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिनामोन के लिए SINN डॉट करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या वेट के लिए WT लिखा है, इम्पॉर्टेंट के लिए IMP लिखा है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, आप उसमें से अपने मन से भी अलग तरह का बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको पैराग्राफ पढ़ के उसका एक तरह से कंक्लूजन जैसा लिखना है, उसका आपको सारांश लिखना है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसे आप अपने मन से बनाएं, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह का बनाएंगे तो वो उचित नहीं है। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब द हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़।